कैसी स्क्रीन आ गई? बंद करो ना। अच्छा ये ऐसी क्यों आई है? चलो कोई और आएगा तभी। हो गई तुम्हारी क्लास से खत्म? Yes, anything? Yes, beta, how are you all? Click at the option start video, beta. Yes. How are you all? Beta, some students in your class, I have never seen their faces. Some names are there, Aditya, and so many are there mentioned in the EduNext, but I haven't seen their faces. Whether they are students or they are dummy students, we never saw them. Okay, anything you want to ask from me, beta? We are doing principles of accounting. I think we will today finish all the principles, only limited are left. Any question you want to ask? Ma'am, excuse me, ma'am. Yes. Can you please explain once again matching concept? Which one concept? Matching concept. Matching concept. Beta, I think we will do the matching concept from the NCERT, because in this PowerPoint slide, the content is too less. Okay? Today we will revise the principles like we have done, I think 3 from this slide. Na? One is matching concept, cost concept. This we will do from the NCERT today, because in this PowerPoint slide the information is very less. Fine. Today we Hanji, Prisha, what you want to say? Consistency concept also. प्रीशा नहीं क्लियर है, आवाज फिर से बोलिए। मैम कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। ठीक है बेटे। बेटे आज ना मैं एनसीईआरटी से कराती हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में वी आर हैविंग मोर एलेबोरेटेड ना, सो वी विल डू फ्रॉम द एनसीईआरटी टुडे। फाइन, कैन आई स्टार्ट? Excuse ma'am. Yes. Now you are having little bit ideas na? Now you can also let me know while doing the content from NCERT. Fine. This is the second chapter which we are doing, theory base of accounting. This one is the cost concept, beta. I think I have done till here. We have done, है ना? Yes, accounting. Your voice is not audible. हाँ, बेटे कॉस्ट कॉन्सेप्ट कराऊं यहाँ से? और कॉस्ट कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू? यू वांट मी टू रिवाइज इट फॉर यू और नॉट? Clear. यस बेटा, मैम क्लियर है। क्लियर है, ठीक है बेटे। तो हम ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट करते हैं एक बार। इसमें ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज टू मच इलैबोरेटेड, द थिंग्स विल बी मोर क्लियर टू यू। ठीक है, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। चलिए, स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन? Yes ma'am. Yes, okay, start. Yes. Dual aspect is a fundamental or the basic principle of accounting. This everybody knows. It provides the very basis for recording business transaction into book of account. This concept states that every transaction has a dual or twofold effect and should therefore be recorded at two places. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हर ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट होगा और हर ट्रांजैक्शन को हमें दो प्लेसेस पे लिखना है। In other word, at least two accounts will be involved, और उसमें कितने? कम से कम दो accounts. This can be expressed with the help of an example. Now just listen the example nicely.
Ram started business by investing in a sum of rupees 50 lakh. Our voice is not clear. Not clear? Yes, ma'am. Wait then. Wait, beta. महेंद्र शिवाजी बाहर आ रहे, शिवाली जी का नंबर भी लगवा। महेंद्र शिवाजी बाहर आ रहे, शिवाली जी का नंबर नहीं लगवा। Okay, beta. Now tell me. Ram started business. My voice is clear now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. बेटा एग्जाम्पल पढ़ रही हूँ, ध्यान से जरा सुनना एग्जाम्पल. फाइन. Ram started business by investing in a sum of rupees 50 lakh. अच्छा, राम ने बिजनेस स्टार्ट किया. सो राम इज अ ऑनर. ऑनर ने बिजनेस स्टार्ट किया विद द कैपिटल ऑफ रुपीज 50 लाख. इसका यही मतलब हुआ. The amount of money brought in by the business will result in an increase in the asset of the business by 50 lakh. उसने कहा है कि जब राम ने बिजनेस को में 50 लाख इन्वेस्ट किया, तो बिजनेस के बाद दो एस्पेक्ट्स हैं. एक तो बिजनेस के पास कैश आ गई 50 लाख की. कैश क्या होता है? एसेट. फिर से देख सुनिए. 50 लाख रुपीस जब राम ने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो हमने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से. बिजनेस के पास क्या आ गया? कैश. फाइन. एट द सेम टाइम द ऑनर इक्विटी और कैपिटल विल ऑल्सो इंक्रीज. एक बिजनेस के पास कैश आ गया, दूसरे बिजनेस का उधार बढ़ गया, इंक्रीज हो गया. उधार इंक्रीज हो गया. उधार को क्या बोलते हैं? कैपिटल. तो दो एस्पेक्ट हो गए. कैश बढ़ गई, कैपिटल बढ़ गई. मैंने आपको कल भी एक एग्जांपल दी थी ना कि लाइक वी परचेज मशीनरी फॉर बिजनेस. उसमें क्या था? मशीनरी इंक्रीज हो गई, कैश डिक्रीज हो गई. लेकिन इसमें दोनों चीजें इंक्रीज हुई हैं. जब राम ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, तो बिजनेस के पास क्या आ गया? कैश आ गया. और उधर से बिजनेस की लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, क्योंकि बिजनेस को वो कैश वापस भी करनी है. तो हो गए दो एस्पेक्ट. It may be seen that the two items that got affected by the transaction are cash and capital amount. इस ट्रांजैक्शन के बिजनेस के ऊपर दो इफेक्ट पड़ा है. एक कैश अकाउंट पे इफेक्ट है, एक कैपिटल अकाउंट पे है. कैश इंक्रीज हो गई 50 लाख से, कैपिटल भी इंक्रीज हो गई 50 लाख. बेटा क्लियर है दिस पॉइंट टू एवरीवन? Yes, ma'am. Okay. Let us take another example to understand this point further. Suppose a firm purchased goods for rupees 10 lakh on cash. अब देखिए 10 लाख की गुड्स खरीदी. अब इसमें दो एस्पेक्ट क्या होंगे? गुड्स इंक्रीज हो गई, कैश डिक्रीज हो गई. फाइन. देखो, this will increase an asset on the one hand and reduce another asset cash on the other hand. When we purchase the goods, goods increase हो गई, हमारे बिजनेस में गुड्स आ गई. गुड्स मतलब एसेट्स. एसेट्स इंक्रीज हो गई और हमने कैश की पेमेंट कर दी, कैश डिक्रीज होगी. एक चीज इंक्रीज हो गई, दूसरी चीज डिक्रीज हो गई. सिमिलरली इफ अ फर्म परचेज अ मशीन, जो कि मैंने आपसे किया था आपके साथ, मशीनरी ऑन क्रेडिट. अब हमने उधार पे मशीनरी खरीदी. जब उधार पे मशीनरी खरीदेंगे, दो एस्पेक्ट क्या होंगे? मशीनरी इंक्रीज हो जाएगा और उधर लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, देखो, there will be an increase in asset machinery on the one hand and a liability on the other hand. जब हम उधार पे चीज खरीदेंगे तो हमारे पास मशीनरी भी आ जाएगी और उधर लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमने पैसा पेमेंट नहीं की. This type of dual effect take place in case of all the business transaction and is also known as duality principle. उसने कहा ये जो उनसे इफेक्ट है ना, ये हर बिजनेस ट्रांजैक्शन में होता है, इन एवरी ट्रांजैक्शन. और इसको हम कौन से प्रिंसिपल बोलते हैं? डुअलिटी प्रिंसिपल. द डुअलिटी प्रिंसिपल इज कॉमनली एक्सप्रेस. ये बेटा इसके आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा. एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. ठीक है. In other words, the equation states that the assets of the business are always equal to the claims of outside owners and the outsider. उसने कहा है जो assets है वो हमेशा किसके इक्वल होती हैं? Assets हमेशा किसके इक्वल होती हैं? Liabilities और capital के इक्वल. Claims of owner, liabilities को क्या बोलते हैं बेटा? Claims of outsiders. और capital को क्या बोलते हैं? Claims of owners. तो उसने कहा है कि हमेशा हमारी assets इन दोनों के इक्वल होती है.
The claims are called equity of owners is termed as capital. कैपिटल क्या होता है? ऑनर की मनी, इसे ऑनर्स इक्विटी भी बोलते हैं. कैपिटल का मतलब है ऑनर की मनी और इसको हम क्या बोलते हैं? ऑनर्स इक्विटी भी बोलते हैं. और आउटसाइडर को क्या बोलते हैं? बाहर के लोगों का पैसा, उसे बोलते हैं लायबिलिटीज, उसे बोलते हैं क्रेडिटर्स इक्विटी. तो ऑनर्स इक्विटी क्या है? कैपिटल है. क्रेडिटर्स इक्विटी क्या है? लायबिलिटी है. The twofold effect of such transaction effect in such a manner the equality of both sides is maintained. उसने कहा है हर ट्रांजैक्शन में दोनों साइड्स हमेशा इक्वल होती हैं. एसेट्स किसके इक्वल होती है? लायबिलिटी प्लस कैपिटल. कैपिटल क्या होता है? ऑनर्स इक्विटी, ऑनर्स मनी. लायबिलिटी क्या है? क्रेडिटर्स इक्विटी, बाहर के लोगों का मनी. The twofold effect in respect may be duly recorded in the books of account. In fact, this concept forms the core of double entry system. बेटा dual aspect concept से क्या चीज बनी है? डबल एंट्री सिस्टम. ठीक है, अब बताइए किसी को कोई डाउट इसमें बेटा? किसी को कोई डाउट है तो बताइए मुझे. यस, मैंने आपके साथ ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट अभी रिवाइज किया है. आप में से कोई भी स्टूडेंट है जिसको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए. हाँ जी सुशांत, एनी क्वेश्चन? नो मैम. ठीक है. अच्छा, आपको ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन? सुशांत, देयर इज वन क्वेश्चन फॉर यू. हाँ जी सुशांत, क्लिक एट द ऑप्शन स्टार्ट वीडियो. देयर इज वन क्वेश्चन फॉर यू. सुशांत, आर यू रेडी विद द क्वेश्चन? यस मैम. ओके. सुशांत, सपोज कीजिए we have purchased a building for cash. Sushant, this is a question for you. We have purchased building for cash. तो क्या दो एस्पेक्ट होंगे इस ट्रांजेक्शन के? मैम बिल्डिंग में इन्वेस्ट होगा मैम, अगर हम उसको बिल्कुल. एक तो बिल्डिंग पे इफेक्ट होगा, हमारी बिल्डिंग इंक्रीज हो जाएगी, और दूसरा कैश पे इफेक्ट होगा, कैश डिक्रीज हो गई. हो गए दो एस्पेक्ट. ठीक है सुशांत, फाइन, गुड. Now my next question is for Prisha. Prisha, one question for you. Yes, ma'am. Yes. बेटा, suppose we purchase furniture on credit. तो क्या दो एस्पेक्ट होंगे इसके? मैम हमारा फर्नीचर बढ़ जाएगा. हाँ, और इंक्रीज हो जाएगा. और मैम हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि हमें उसको पैसे. लायबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? क्रेडिट में लायबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. इंक्रीज हो जाएगी. वेरी गुड. When we purchase furniture on credit, furniture increases, furniture आ गया हमारे पास, but liability also increases. Very good. Now question is for Manpreet. Yes. Yes, ma'am. Yes, beta. Beta, suppose the owner invest rupee in the business, then what happen? Owner invest rupees in the business. Ma'am, your voice is not clear. Owner है, suppose कीजिए owner invest rupees in the business. So क्या impact होगा? मैम बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ जाएगी. Yes, good. और बेटा ऑनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट की ना रुपीस, तो बिजनेस के पास पैसा भी तो आ जाएगा. यस मैम. है ना? बिजनेस की कैश इंक्रीज हो जाएगी और दूसरी साइड में हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी. फाइन. वन साइड कैश इंक्रीज हो रही है, अदर साइड हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है. ठीक है. नाउ माय क्वेश्चन इज फॉर पार्थी. यस पार्थी, आर यू रेडी विद द क्वेश्चन? Yes. हाँ पार्थी, लेट मी नो. हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया ऑर्गेनाइजेशन का. इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया ऑर्गेनाइजेशन का. हाँ जी. व्हाट आर द टू इफेक्ट्स? व्हाट इज द टू फोल्ड रिएक्शन? नो आइडिया? मैम हाँ जी बोलो. पार्की, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू. हाँ, वी हैव पेड, द ऑर्गेनाइजेशन हैज पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल. तो उसके दो इफेक्ट क्या होंगे?
हम इलेक्ट्रिसिटी no जो idea? कंटिन्यू, इलेक्ट्रिसिटी जो कि वो कंटिन्यू रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू रहेगी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कटेगी नहीं। नहीं बेटा। तनिष्का आप बताइए बेटा, इलेक्ट्रिसिटी मैम बिल पे। कैश कम हो जाएगा वेरी गुड। और वहां से कैपिटल भी कैपिटल पे क्या इफेक्ट हुआ इसका? नहीं, वहां से एसेट साइड से अच्छा गुड। एसेट साइड से कैश कम होगा और वहां से एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। यस वेरी गुड, यू आर वेरी राइट। यस तनिष्का, इसके दो इफेक्ट क्या होंगे? एक तो हमारी कैश कम हो जाएगा, उधर हम अपने एक्सपेंसेस में नोट डाउन करेंगे, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गई। यस, जब हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेंगे तो आप अपने एक्सपेंसेस में नहीं लिखोगे बेटा। हमने पढ़ा है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, व्हाट वी विल राइट, एक्सपेंसेस एंड इनकम। तो आप अपने एक्सपेंसेस को जॉट डाउन करोगे ना एक जगह पे, फॉर द होल ईयर एक्सपेंसेस। तो व्हेन वी पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाएंगे, और दूसरा इफेक्ट क्या होगा? कैश डिक्रीज हो जाएगी। फाइन। यस, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर सानवी। यस मैम। Yes, Sanvi. Suppose, Sanvi, we purchased machinery on credit. Then what is the effect? Ma'am, our machinery will increase and our liabilities will also increase. Increase. Yes, good. When we purchase machinery on credit, liability will increase and machinery also increase. Okay. Now my question is for Krish. Krish, are you ready? Yes, ma'am. Anji. Krish, tell me, in case the owner withdraw some amount from the business for personal use, then what happened? Or owner withdrawal amount from the business. Ma'am, the liability of the business will decrease. Decrease. Or And दो effect capital. बताने हैं ना? One is liability of the business will decrease and his capital also from the business will decrease. बेटा लाइबिलिटी कैपिटल एक ही तो बात हो गई, एक ही तो बात है, लाइबिलिटी और कैपिटल अलग अलग And थोड़ा ना है। assets will also decrease of the business. हरमन स्लो। हाँ जी बेटा, नहीं सुना मुझे। Ma'am, the liability of the business will decrease. और दूसरा इफेक्ट? अच्छा, Ma'am, no problem. capital from the. चलिए, नो प्रॉब्लम। दिस क्वेश्चन विल मूव फॉरवर्ड टू उत्सव। उत्सव, सेम क्वेश्चन फॉर यू। अगर ऑनर विड्रॉ करते हैं सम कैश फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, तो व्हाट आर द टू इफेक्ट्स? यस उत्सव। उत्सव, आपकी वॉइस कुछ नहीं समझ नहीं आ रही, आप कुछ बोल भी रहे हो कि नहीं? अच्छा, आप में से हु नोज द आंसर? अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो। मैम कैश कम हो जाएगा और लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी। लाइबिलिटीज कम हो यस, जाएगी। वेरी गुड। कैश कम हो जाएगा। देखिए, जब ऑनर बिजनेस से अमाउंट लेके जाएगा अपने पर्सनल यूज के लिए, तो बिजनेस की कैश कम हो गई, और उधर से ड्रॉइंग्स का मतलब क्या होता है? कैपिटल कम होना। कैपिटल कम होना मतलब होता है लाइबिलिटी कम होना। तो दो इफेक्ट होंगे, एक तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी और दूसरा कैश कम हो जाएगी। तो आई थिंक एवरीबॉडी गॉट द लिटिल आइडिया ऑफ ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। फाइन। दिस एग्जांपल्स आर यूजफुल व्हेन वी आर गोइंग टू डू द जर्नल एंड लेजर। ठीक है, टिल नाउ आई थिंक ओनली दिस मच इज सफिशिएंट। लेट्स मूव प्रोसीड फर्दर। Yes, but you have to memorize only one thing, that assets is equal to liabilities plus capital. This is the accounting equation, and we have to do the numericals based on this equation also. Is the screen visible to everyone? Yes, ma'am. Okay. Next is revenue recognition concept. This already we have done, but I just want to revise it with you, because this in this NCERT it's given in good detail. The concept of revenue recognition requires that the revenue for a business transaction should be included in the accounting row records only when it is realized. This we have already done. When we are going to include our revenue is included when it is realized. Now second question is when it is realized.
See, here arises two questions in mind. First is termed as revenue and the other when revenue is realized. यही मैंने आपको पूछा है ना कि रेवेन्यू का क्या मतलब है और रेवेन्यू कब रियलाइज होता है, क्योंकि उसने ऊपर क्या कहा है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रेवेन्यू को तब रिकॉर्ड करेंगे जब रेवेन्यू रियलाइज होता है। अब यहाँ पे दो टिपिकल टर्म है, व्हाट इज द रेवेन्यू एंड व्हेन इज द रेवेन्यू रियलाइज्ड। रेवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश arising from the sale of goods and services, use of others of enterprise resources yielding interest। उसने कहा रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि आपकी शॉप में कोई पर्सन आया है, उसने सामान खरीदा, आपको पैसा दिया, मनी दी है इन रिटर्न, दैट मनी इज नोन एज रेवेन्यू। तो रेवेन्यू मतलब द अमाउंट विच वी गॉट आफ्टर द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और रेवेन्यू क्या होता है, हमने किसी को पैसा दिया है उधार पे, दैट पर्सन गिव अस द इंटरेस्ट, मतलब कि जो भी चीजें हमें मिलती हैं, जो भी कैश हमें मिलता है, इनफ्लो ऑफ कैश, जो कैश हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आता है, दैट इज नोन एज रेवेन्यू। 10 क्रेडिट सेल्स आर टर्म्ड एज रेवेन्यू ऑन द डेट सेल्स आर मेड। अब क्रेडिट सेल का मतलब है पैसा नहीं आया, पर उस कंडीशन में रेवेन्यू कब मानेंगे, जिस दिन हमारी सेल हो गई है, या जिस दिन हमारी गुड्स ट्रांसफर हो गई है फ्रॉम द सेलर टू बायर। As for the income such as rent, commission, interest, these are recognized on the time basis। अब बेटा एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल rent for the month of March 2017 even if received in April will be taken into profit and loss account of the financial year 31st March 2017 and not in the financial year beginning। बेटा उसने कहा है कि जिस साल का रेंट है उसी साल में लिखना है। सपोज करो आपको मार्च 2017 को रेंट मिलना था, लेकिन आपको एक महीने पहले ही मिल गया, लेकिन हम उसे कौन से फाइनेंशियल ईयर में लिखेंगे, मार्च 2017 में, अप्रैल वाले में नहीं लिखेंगे, क्योंकि जिस साल का खर्चा है उसी में लिखेंगे, जिस साल की इनकम है उसी में लिखेंगे। सिमिलरली इफ इंटरेस्ट फॉर अप्रैल 2017 इज रिसीव्ड इन एडवांस, अगर अप्रैल का हमें मार्च में पहले ही मिल जाता, तब भी हम किस में लिखेंगे, जिस साल का खर्चा है, इट विल बी टेकन टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2018। उसने कहा जिस साल का खर्चा है उसी साल में लिखेंगे हम, चाहे एडवांस में मिलता है चाहे लेस मिलता है, लेकिन जिस साल का खर्चा है हमने उसी साल में लिखना है। उसने कहा there are some exceptions to this general rule of revenue recognition। इसमें कुछ exceptions भी हैं। In case of contracts like construction work which take longer time, say 2 to 3 years to complete, proportionate amount of revenue based on part of contract completed by the end is treated as realized। उसने कहा लेकिन कई कई केसेस में ऐसा नहीं होता है, लेकिन बेटा हम जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, हमने सब केसेस में करना है, क्योंकि हम ये वाली अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं जो कि अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे इसमें लिखा है हायर परचेज, उस कंडीशंस में हायर परचेज का मतलब पता है क्या होता है, बेटा आपने डाउन पेमेंट करी थोड़ी सी और सामान अपने घर ले गए, वो होता है हायर परचेज, ठीक है। लेकिन हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऐसी कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, तो आप बस यहाँ तक समझिए कि जिस साल का खर्चा है हमें उसी साल में लिखना है, चाहे हमें एडवांस में मिल गया है चाहे हमें नहीं मिला है, पर जिस साल का खर्चा है उसी साल में लिखा जाएगा। क्लियर है? यस बेटा, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट में किसी को डाउट? मैं फिर से बता दूं, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होता है, जब रेवेन्यू रियलाइज होता है। अब रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू का मतलब है कि कोई भी चीज बेचने में जो पैसा मिलता है उसे रेवेन्यू बोलते हैं। अब उसने कहा है कि अगर तो कैश सेल है तो सामान गया ऑर्गेनाइजेशन में से, पैसा आ गया, तो हम कहेंगे रेवेन्यू रियलाइज हो गया। लेकिन क्रेडिट में रेवेन्यू कब रियलाइज होगा, तो क्रेडिट सेल में उसने कहा है रेवेन्यू तब रियलाइज होता है जबकि गुड्स ट्रांसफर होती है फ्रॉम सेलर टू बायर। हम वेट नहीं करते हमें कैश मिलेगा, जिस दिन आपका सामान आपकी शॉप से दूसरे के पास चला गया, आपकी शॉप से बाहर निकल गया, आप उसी दिन सोचोगे रेवेन्यू क्या हो गया, रियलाइज हो गया। राइट? फिर उसने कहा है कि ये वाली कंडीशंस एप्रोप्रिएट नहीं है हायर परचेज में, लेकिन हमारे सिलेबस में हायर परचेज नहीं है, वो सिर्फ एक आपको बता रहा है। ठीक है बेटा?
हाँ जी, और कुछ रेवेन्यू रिकॉग्निशन में एनी पॉइंट यू वांट टू कंफर्म? एनीवन? यस, नो? यस, एनी डाउट? यस। आगे है बेटा मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट, the process of ascertaining the amount of profit earned or loss incurred during a particular period। इसमें मैंने आपको कल मैचिंग कॉन्सेप्ट कहा था, कोई बता सकते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है? Yes, anyone can? Prisha, can you let me know what is matching concept? Yes, Prisha. Tanishka, can you let me know what is matching concept? शिवानी ज्यादा नहीं बोलती है। Yes, beta. There is some networking problem. Okay, now it's fine. I have done the matching concept. Earlier I have done matching concept with you. Can anybody let me know what's matching concept? Any one of you? Matching concept. Anyone can let me know matching concept? Determination of net profit. हाँ जी, एक बार फिर से बताइए सुशांत, क्या है मैचिंग कॉन्सेप्ट? मैम, determination of net profit. Yes, good. Any other person? Yes, Manpreet, Profit can you is tell equal me? to revenue minus expense. Yes, fine. और कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें? मनप्रीत, कैन यू लेट मी नो? Yes, Manpreet, can you tell me something more about matching concept? No. Krish, can you let me know something more about matching concept? Ma'am, it helps us to tell the net profit or net loss at the end of the accounting ठीक है. period. Now I will let you know. Matching concept means you are very well right. Everyone is very well right that it helps to determine the net profit. But there is one hidden meaning inside it. They are telling that the net profit of a particular year can only be calculated when expenses of that particular year is matched with the revenue of that particular year. जिस साल का खर्चा है उसी साल की इनकम के साथ कंपेयर करना है, तब हमें क्या पता चलेगा? नेट प्रॉफिट. सपोज कीजिए व्हाट हैपन बेटा, आप लैंडलॉर्ड हो, यू आर अ लैंडलॉर्ड ऑफ सम बिल्डिंग. आपके जो टेनेंट है उन्होंने आपको 1 महीने की रेंट पहले ही दे दिया, मतलब कि उस मंथ का इनकम नहीं है और उसने आपको एडवांस में दे दिए, तो आप उस मंथ की इनकम में उसे नहीं लिखोगे, जिस मंथ की इनकम है उसी में लिखोगे. क्यों? क्योंकि तभी हमें ट्रू प्रॉफिट का पता चलेगा अगर हम 1 साल के एक्सपेंसेस को या 1 महीने के एक्सपेंसेस को उसी महीने की इनकम के साथ कंपेयर करेंगे. अगर आपको एडवांस में रिसीव होता है, जहां आपको प्रीपेड है, जहां आउटस्टैंडिंग है, तो उसे एज्यूम नहीं करेंगे. इसके लिए बेटा मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ. इसमें 2 वर्ड हैं जो आपको समझने पड़ेंगे. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस. आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है एक्सपेंसेस ड्यू नॉट पेड, जो आपको पे करना था पर आपने पे नहीं किया, उसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. एक होते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस. प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब है जो आपने एडवांस में पे कर दिए, उसे प्रीपेड है. जैसे आपके पास अमाउंट की पैसे की कमी है, तो आपने लैंडलॉर्ड को कहा कि मैं इस महीने पैसे नहीं दूंगा, सॉरी मैं अगले महीने दोनों दे दूं, तो उसे क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग. प्रीपेड का मतलब है आपके पास पैसे हैं, तो आपने कहा कि आप इसी महीने आने वाले का भी ले लीजिए, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रीपेड. आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड दोनों एग्जांपल्स हम यूज करेंगे मैचिंग कॉन्सेप्ट में. फाइन. नाउ जस्ट हैव अ लुक एट वंस. आइए फिनिश कर लेते हैं. Is it visible to everyone, beta? Yes, ma'am.
Okay, now just have a look. The process of ascertaining the amount of profit earned or a loss incurred during a particular period involves deduction of related expenses from the revenue. ये हम कर चुके हैं. उसने कहा है कि हमें प्रॉफिट के बारे में कब पता चलता है, जब हम एक्सपेंसेस को रेवेन्यू में से माइनस करते हैं. ये आपने मुझे सबने बता दिया था. The matching concept emphasizes exactly on this aspect. It states that expenses incurred in an accounting period should be matched with the revenue during that period. This is more important line. जिस साल का एक्सपेंस है उसी साल की इन रेवेन्यू के साथ हम कंपेयर करेंगे. It follows from this that revenued expenses incurred to earn these revenue must belong to the same accounting period. जो हमारे expenses होंगे, जो हमारे revenue होंगे, वो दोनों similar accounting period के होने चाहिए. As early stated, revenue is recognized when sale is complete. ये फिर से उसने कहा है कि हमें पता है revenue कब recognize होता है, जब sale होती है. Sale is complete or service is rendered rather than cash is received. Revenue कब recognize होता है, जब sale होती है. Sale कब होती है? When ownership transfer from the seller to the buyer. Similarly, an expense is recognized not when the cash is paid, but when an asset or service has been used. उसने कहा है खर्चा हम कब मान के चलते हैं, उस समय नहीं मान के चलते जब हमने कैश पे किया है, बल्कि तब मान के चलते हैं जब हमने सर्विसेज, हमने दूसरे ने हमें सर्विसेज प्रोवाइड की हैं. क्लियर है? फिर से सुनिए. एक्सपेंसेस हम कब मानेंगे, हमारे हो गए हैं. एक्सपेंसेस तब नहीं मानते जब हमने कैश पे किया. जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है कि मैं रेंटेड हाउस में रहती हूँ, तो मैंने जनवरी के मंथ का रेंट पे नहीं किया, तो मैं क्या मानूंगी कि जनवरी के मंथ का कोई खर्चा नहीं है. नहीं, खर्चा तो है, क्योंकि मुझे उस घर की सर्विसेज मिल गई हैं. फाइन. तो उसने कहा एक्सपेंसेस कब रिकॉग्नाइज होते हैं, जब हमें सर्विसेज मिल गई हैं, बल्कि तब नहीं होते जब हम कैश पे कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, expenses such as salaries, rent, insurance are recognized on the basis of period to which they relate and not when they are paid. आपने सैलरी और रेंट आपका खर्चा है, तो जिस महीने की सैलरी पे करनी है वो उस साल का खर्चा है, चाहे आप उस महीने में पे करो चाहे ना पे करो, पर जिस मंथ का खर्चा है आपको उस मंथ में लिखना है. Similarly, cost like depreciation of fixed asset is divided over the periods during when the asset is used. उसने कहा है ऐसे ही हम जो हमारी एसेट का डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन मतलब होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, उसे हम उस एसेट की पूरी लाइफ में बांट देते हैं. Let us also understand how cost of goods are matched with their sales revenue. While ascertaining the profit and loss of an accounting year, we should not take the cost of all the goods produced or purchased during that year, but consider only the cost of goods that had been sold during year. now उसने कहा है कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो हमने सिर्फ ये देखना है कि हमने एक साल में उस साल में कितना सामान बेचा है ड्यूरिंग दैट पीरियड. बट सिर्फ हमने ये नहीं देखना कि इस साल मैंने कितना सामान परचेज किया है, बल्कि ये भी देखना कि इस साल मैंने कितना सामान बेचा है, क्योंकि जिस साल परचेज करेंगे उसी साल की सेल लिखेंगे तभी तो हमें ट्रू प्रॉफिट का पता चलेगा. तो परचेज भी लिखनी है तो उस साल की सेल भी लिखनी है. फॉर दिस पर्पस द कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, अब जो स्टॉक बच गया है उसको हम माइनस करेंगे परचेज में से भी. ठीक है. अगर हमने कोई सामान परचेज किया है तो उस साल जितना सामान हमने बेचा है उन दोनों को आपस में हमने कंपेयर करना है. The matching concept thus implies that all revenue earned during an accounting period, whether received during that year or not, and all costs incurred whether paid during that year or not, will ascertain profit and loss. उसने कहा है कि सारे के सारे हमारे रेवेन्यूज जो हमने अर्न करे हैं उस टाइम पीरियड में, चाहे हमें मिले हैं चाहे नहीं मिले हैं, ऐसे ही कॉस्ट जो हमने इंकर की है, चाहे कॉस्ट हमने पे की हो चाहे पे ना की हो, पर हमें प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है. मतलब कि जो खर्चा आपका हो गया है, खर्चा ड्यू है, चाहे आपने पे किया है चाहे नहीं पे किया, आपको खर्चों में लिखना है. ऐसे ही आपकी रेवेन्यू
आपने अर्न कर ली है, चाहे आपको कैश मिली हो चाहे कैश ना मिली हो, पर आपको लिखनी है। ये है मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। जिस साल का खर्चा है उसी साल में लिखना है, जिस साल का रेवेन्यू है उसी साल में लिखना है, चाहे आपने पे किया है चाहे पे नहीं किया है। इसे बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। फाइन बेटा, मैचिंग कॉन्सेप्ट ना आपको अगर लग रहा है ना दिस इज टू इजी, दिस इज नॉट टू इजी। मैचिंग कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टिपिकल है, तो प्लीज एनसीईआरटी की बुक में से इसको फिर से रीड करके आएंगे। इसकी लैंग्वेज बहुत टिपिकल है मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये स्ट्रेस दीजिए जो मैं वर्ड समझा रही हूँ। जिस साल का खर्चा है, जिस साल खर्चा हुआ है उस खर्चों में लिखना है, चाहे आपने पे किया है चाहे नहीं पे किया। ऐसे ही जब रेवेन्यू अर्न कर लिया है तो उस साल में लिखना है, चाहे आपको रेवेन्यू रिसीव हुआ है चाहे नहीं हुआ। तो प्लीज जस्ट रिवाइज मैचिंग कॉन्सेप्ट once, twice, thrice so that you came to know about exact meaning what they want to say. Fine? और कोई डाउट किसी को? एनी पर्सन, एनी क्वेश्चन? यस, एनीवन? नो? यस मनप्रीत, एनी क्वेश्चन बेटा? No, ma'am. ठीक है, ओके देन। एनी अदर? सानवी, एनी क्वेश्चन? No, ma'am. ठीक है बेटा, फिर जस्ट रिवाइज द कंटेंट एंड जस्ट वी विल मीट टुमारो ओनली। फाइन, द टाइम इज ओवर, वी विल मीट टुमारो देन। है ना? थैंक यू। ओके बेटा, ओके देन, बाय।